کوفہ کی فضا میں دھول اڑ رہی تھی، بازاروں کے دروازے بند تھے اور شہر کی گلیوں میں صرف ڈر کے سائے گھوم رہے تھے۔ موصب بن زبیر کی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ 30,000 کا لشکر جو مختار کے ساتھ ہرورا سے نکلا تھا اب مٹھی بھر رہ گیا تھا۔ کچھ میدان میں کام آئے، کچھ رات کی تاریکی میں گھروں میں روپوش ہو گئے، اور جو بچے وہ قصر عمارت کے اندر قید ہو گئے۔ 4 مہینے، پورے 4 مہینے قلعہ بند سپاہی بھوک اور پیاس سے لڑتے رہے۔ باہر موصب کے دستے پہرا دے رہے تھے، اندر مختار اب بھی ہر صبح قلعے کے دروازے سے نکل کر دشمن پر چھاپا مارتا اور پھر واپس لوٹ آتا، گویا شکست اس کے قاموس میں تھی ہی نہیں۔ شہر کے لوگ جو کبھی اس سے ڈرتے تھے اب قصر کی دیواروں پر چڑھ کر پتھر اور کیچڑ پھینکنے لگے۔ وقت نے وفادانیوں کے چہرے بدل دیے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، چراغ مدھم جل رہے تھے اور کنویں کے گرد چند سپاہی پیاس سے نڈھال بیٹھے تھے۔ سپاہی بولا، امیر کوفہ، پانی ختم ہو گیا ہے، کنویں میں صرف کڑوا پانی بچا ہے۔ مختار بولا، پانی نہیں مگر ایمان ابھی باقی ہے۔ دوسرا سپاہی بولا، ایمان پیاس نہیں بجھاتا آقا، جسم بھی تو خالق کی امانت ہے۔ مختار لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، بیت المال میں شہد ہے، اسے کنویں میں ڈال دو، اگر پانی کڑوا ہے تو ہم اسے میٹھا کر لیں گے۔ ہماری پیاس کا فیصلہ خدا کرے گا، دشمن نہیں۔ سپاہیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا مگر حکم کی تعمیل کی۔ شہد سے کنویں کا پانی میٹھا ہوا اور وہ لمحہ بھوک اور پیاس کے درمیان ایمان کی آخری چمک بن گیا۔ موصب کے پہرے سخت ہو چکے تھے، عورتوں کا قلعے تک آنا بند کر دیا گیا۔ جو بھی نزدیک آتی اس سے نام اور غرض پوچھی جاتی، پھر بھی کچھ عورتیں جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے شوہروں تک کھانا پہنچاتی۔ ایک روز چند عورتیں پکڑی گئیں، جب موصب کے سامنے لائی گئیں تو ایک بولی، ہم صرف روٹی دینے آئی تھیں، بغاوت نہیں۔ موصب نے انہیں دیکھا، پھر سپاہیوں سے کہا، جانے دو، بھوک کی جنگ میں عورتیں دشمن نہیں ہوتی۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت قلعے کی فصیل پر شور مچ گیا۔ بازار کے چند نوجوان جو بصرہ سے آئے تھے مختار کو گالیاں دے رہے تھے۔ مختار چھت پر آیا، چہرے پر گرد، آنکھوں میں بجلی۔ مختار گرجدار آواز میں چلایا، ایسا لگتا ہے تم میں کوئی سردار نہیں، ورنہ یہ زبان کی گستاخی زندہ نہ رہتی۔ پھر اس نے اپنے دستے کی طرف دیکھا، دروازہ کھولو، آج ہم ان کے غرور کو زمین دکھائیں گے۔ دھول اڑی، دروازہ کھلا اور مختار 200 سپاہیوں کے ساتھ نکل آیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں نے بازار کی اینٹیں ہلا دیں، تلواریں چمکیں اور لمحوں میں فضا چیخوں سے بھر گئی۔ 100 کے قریب دشمن وہیں گرے، باقی بھاگتے بھاگتے بھی مارے گئے۔ قلعے کی دیواروں پر مختار کھڑا تھا، سانس بھاری مگر نگاہ اٹل۔ سپاہی، امیر، آج بھی فتح ہماری ہے۔ مختار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فتح نہیں، یہ آخری سانسیں ہیں، مگر میں چاہتا ہوں یہ سانسیں بھی میدان میں نکلیں، قید میں نہیں۔ قصر کے صحن میں خاموشی تھی، ہوا جیسے رک گئی ہو، چہرے مٹی سے اٹے، آنکھوں میں بھوک اور دل میں خوف۔ 4 ماہ کے محاصرے میں سپاہیوں کے حوصلے چوس لیے تھے۔ مختار قلعے کے بلند زینے پر چڑھا، اس کی آواز خاموش فضا کو چیرتی ہوئی پھیلی، مختار، اے کوفہ کے سپاہیوں، یاد رکھو، جتنا طویل محاصرہ ہوگا اتنی تمہاری ہمت ٹوٹے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور کھلے میدان میں مردوں کی طرح لڑو۔ اگر آج ہم نے تلوار نہ اٹھائی تو کل تاریخ ہمارے نام سے نفرت کرے گی۔ سپاہیوں نے نظریں جھکا لیں، کہیں سے ایک مدھم آواز اٹھی، سپاہی، امیر، ہم بھوک سے نڈھال ہیں، تلوار اٹھانے کی سکت نہیں رہی، ہمیں امان کی کوئی راہ سوچتی ہے، جنگ کی نہیں۔ مختار نے تڑپ کر تلوار زمین پر ماری۔ مختار،
खुदा की कसम, मैं किसी जालिम के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो याद रखना तुम्हारे सरों से इज्जत भी छिन जाएगी, और जब दुश्मन तुम्हें ज़बा करेगा तुम एक दूसरे से कहोगे, काश हमने मुख्तार का कहा मान लिया होता। वो लम्हा तारीख का कर्बनाक मोड़ था। हजारों सिपाहियों में से सिर्फ 19 आगे बढ़े। 19 चेहरों पर वही अज़्म था जो कभी कूफा की गलियों में गूंजा करता था। मुख्तार आहिस्तगी से, तुम वो हो जो मौत से आंख मिलाने आए हो, आओ इज्जत के साथ चलते हैं। उसने अतर अपने लिबास पर छिड़का, चेहरा धोया और किले के दरवाजे की सिमत बढ़ा। दरवाजा चरचराते हुए खुला, धूप का सैलाब अंदर उमड़ आया। किले के बाहर मैदान कूफा में दुश्मन सफ बस्ता खड़ा था। मसब के लश्कर के शोर में तलवारें बज रही थीं। मुख्तार के 19 सवार घोड़ों पर सवार हुए। साहिब बिन मालिक ने रुके हुए लहजे में कहा, अमीर, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे दिल ने जवाब दे दिया है। मुख्तार ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से बोला, जा, मगर याद रख, मैदान छोड़ने वाले का साया भी बुज़दिल होता है। साहिब अलग हो गया और बाकी 18 सवार मुख्तार के साथ दुश्मन की सिमत बढ़े। ढोल बजा, नारा बुलंद हुआ और घोड़ों की टापों से जमीन कांपी। तलवारों की चमक आंखों को खेरा कर गई। चंद लम्हों में हर सिमत खून के छींटे थे। एक एक करके उसके साथी गिरते गए। मुख्तार तन्हा रह गया। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ए परवरदिगारे हक, मैंने जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई थी। अगर मैं गुमराह था तो ये मेरा अंजाम काफी है। फिर वो दुश्मन के दरमियान जा घुसा। तलवारें उसके जिस्म में धंस गईं और वो अपने साथियों के लाशों के ढेर पर गिर पड़ा। वक्त ठहर गया। कूफा की जमीन पर एक और ख्वाब दफन हो चुका था। किले के अंदर अब खामोशी का राज था। दूसरे दिन मुख्तार का अफसर मीर बिन अब्दुल्ला अली बची खुची फौज के सामने आया। ऐ कूफा वालो, अब वक्त है इज्जत की मौत मरने का। बाहर निकलो, लड़ो कि दुश्मन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर वही सिपाही जो कल तलवार से डरते थे आज भी खामोश खड़े थे। एक सिपाही, हम थक गए हैं मीर, हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। और यूं वो सब किले के दरवाजे पर दुश्मन के हवाले हो गए। बसरी फौज ने उन्हें पाबाजुला कैद किया और मसब के सामने लाया गया। मजमे में खामोशी छा गई। मसब के हुक्म का इंतजार था। इसी लम्हे एक शख्स आगे बढ़ा, खैर बिन अब्दुल्ला मक्की। तमाम हम्दो सना उस खालिक के लिए है जो आज तुम्हें आजमाइश में डाल रहा है कि तुम माफ करते हो या इंतकाम। ए इब्ने जुबैर, हम तुम्हारे ही कबीले के लोग हैं, काफिर या तुर्क नहीं। अगर आज तुमने दरगुजर किया तो खुदा तुम्हें इज्जत देगा। मसब ने सर झुका लिया। मजमे में एक लम्हे के लिए सुकूत छा गया। चंद आंखें भीग गईं। मसब के होंठों से आहिस्ता सा निकला, मैं इन्हें छोड़ देना चाहता हूं। मगर वही कूफी सरदार जिनके दिल नफरत से भरे थे अचानक खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद, अमीर, या तो इन पर रहम करो या हम पर। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बाप, हमारे भाई मारे। मसब के चेहरे पर फैसला सख्त हो गया। उसने निगाह उठाई और कहा, फिर खून का कर्ज खून से अदा होगा, सबको कत्ल कर दो। शोर बुलंद हुआ, तलवारें खनकीं। 6000 कैदी चंद लम्हों में जमीन पर गिर चुके थे। कूफा की गलियां फिर से खून में नहा गईं। कसर के बाहर धूप खून की तरह फैली हुई थी। जमीन पर पड़ी लाशों के बीच मुख्तार का जिस्म साकित था, मगर चेहरे पर अब भी वही जलाल, वही वकार, जैसे अभी उठकर तलवार संभाल लेगा। मुसब के हुक्म पर सिपाहियों ने उसके दोनों हाथ काटकर मस्जिद के दरवाजे के पास कीलों से ठोंक दिए। खून टपक रहा था और हवा में एक अजीब सा सुकूत तैर रहा था। मुसब खामोश खड़ा लाश को देख रहा था। फिर बोला, यह था वो मुख्तार जिसने नबूवत का दावा किया, जिसने कूफा में आग लगाई। एक सिपाही बोला, अमीर, क्या हुक्म है? मुसब ने सर झुकाकर कहा, लाश को वहीं रहने दो,
ताकि लोग देखें कि झूठा नबी कैसे मरता है। इसी लम्हे पर्दा हटा और दो औरतों को पेश किया गया। एक साबित बिनते समरा, चेहरे पर होशियारी की झलक, और दूसरी उमरा बिनते नौमान, निगाहों में अज़्म, आंखों में आग। मुसब ने सवाल किया, तुम दोनों अपने शौहर के दावे के बारे में क्या कहती हो? क्या तुम भी उसके नबी होने पर ईमान रखती थीं? साबित ने जल्दी से झुककर कहा, अमीर, हम औरतें अपने मर्दों के साथ रहती हैं, मगर उनके अकाइद पर हमारी राय बेमानी है। आपकी राय ही बरहक है। मुसब ने इशारा किया, इसे छोड़ दो। फिर उसने उमरा की तरफ देखा, और तुम्हारा क्या कहना है? उमरा ने सर उठाया। उसकी आवाज में वो ठहराव था जो तूफान से पहले आता है। मुख्तार खुदा के नेक बंदों में से था। उसने जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद किया, कमजोरों को ताकत दी। अगर उसने कुछ कहा तो वो अपने ईमान के जोश में कहा, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसका दिल कैसा था। मुसब के माथे पर शिकने गहरी हो गईं। तो तुम उसकी तायीद करती हो, उसको नेक कहती हो? उमरा ने आगे बढ़कर कहा, मैं उसकी बीवी हूं। मैंने उसके चेहरे पर रातों की इबादत देखी है। मैंने उसके दिल से निकलती हुई वो आहें सुनी हैं जो दुनिया के किसी झूठे के सीने से नहीं निकल सकती। अगर तुम उसे मुर्तद कहते हो तो तुम्हारे फैसले के सामने मैं भी कैदी सही, मगर मेरी जबान गुलाम नहीं बनेगी। मुसब का लहजा बर्फ बन गया। इसे कैद खाने में ले जाओ और अपने भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर को लिखो कि ये औरत मुख्तार को नबी मानती है। हुक्म क्या है? कुछ दिन बाद जवाब आया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने लिखा, अगर इसका यही अकीदा है तो ये मुर्तदा है, इसे कत्ल किया जाए। रात सियाह थी। हीरा और कूफा के दरमियान वीरान मैदान में सिपाही उमरा को ले आए। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। एक सिपाही मत्र बिन गस्सान आगे बढ़ा। तलवार चमकी। उमरा ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, मैंने मुख्तार से वफा की, अब तुझ से वफा चाहती हूं। 3 ज़रबें लगीं। उमरा जमीन पर गिरी, मगर चेहरे पर अजब सुकून था, जैसे वो फिर से मुख्तार के पहलू में जा सोई हो। दूर से एक मर्द भागता हुआ आया। लब्बान बिन नोमान, उमरा का भाई। वो चीखा, हरामजादे, तूने मेरी बहन को मारा, खुदा तेरा हाथ काटेगा, और गुस्से में मत्र के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। सिपाही उसे घसीटते हुए मुसब के पास ले गए। मुसब ने उसकी हालत देखी। आंखें सूजी हुई, हाथ कांप रहे थे, मगर दिल जलता हुआ। मुसब ने आहिस्ता कहा, इसे छोड़ दो, ये अपनी बहन का मंजर देख चुका है, इससे बड़ी सजा कोई नहीं। मैदान में अब 2 लाशें थीं, एक मुख्तार की, एक उमरा की। हवा रुकी हुई थी। चांद निकल आया था, जैसे आसमान खुद उनके जनाजे पर रोशनी डाल रहा हो। ये दास्तान अपने अंजाम को तो पहुंच गई, मगर पीछे ऐसे सवाल छोड़ गई जो सदियों से तारीख के सीने में गूंज रहे हैं। ये खाक आलूद जिस्म वही शख्स है जिसने अपने ज़माने को हिला कर रख दिया, जिसने कातिलाने हुसैन अलैहिस्सलाम को अंजाम तक पहुंचाया और खुद एक तूफान बनकर गुजरा। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या वो वाकई नबूवत का दावेदार था, या ये सब महज एक फरेब, एक मुगालता और ज़माने की फैलाई हुई मुबालगा आराई थी? उम्मत आज तक खामोश है और तारीख अभी तक फैसला नहीं सुना सकी। और जब तारीख के इन धुएं में एक नया सवाल झलकता है, तब हम लेकर आ रहे हैं एक और दादखेज दास्तान। पासबाने हरम पेश करता है अकबर बादशाह और दीन इलाही का फितना। आइए इस दफा हम देखेंगे अकबर का उरूज, उसका ख्याल नौ और वो कश्मकश जो इक़्तिदार ने अकीदे के सामने खड़ी कर दी। तैयार हो जाइए एक ऐसी किस्त के लिए जिसमें सवालात जोर से उठेंगे, मुकालमे खंजर बनकर दिल पर चलेंगे और तारीख फिर अपनी चीख के साथ सामने आएगी। आने वाली किस्त में मिलते हैं जहां सच, ताकत और ईमान एक दूसरे के मुंह पर बराह रास्त खड़े होंगे।